الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أول كلامنا، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في أوسط كلامنا، وصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في آخر كلامنا، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل صد احترام جناب صدر صاحب اور رونق افروز اسٹیج پر علماء دین، مفتیان کرام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بہت ہی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ ہم آج ایک پروکار تقریب کے اندر شرکت کر رہے ہیں جس کی نسبت حفاظ کرام کی دستار بندی کے ساتھ ہے. اب چونکہ بہت سالوں سے یہ عمل یہاں پر مسلسل چلا آ رہا ہے، میں ابتدا کا جو وقت تھا جب ہماری دستار بندی ہوئی تھی، مجھے وہ آج وقت یاد آتا ہے. لوگوں کا جمع غفیر تھا، ایک نئی چیز تھی. تو اس وقت میں اور آج کے وقت میں بہت فرق دکھائی دے رہا ہے. لیکن قرآن کی نسبت سے جو بھی جلسہ ہوگا وہ بہت عظیم ہوگا، وہ بہت برکتوں والا ہوگا. اس میں رحمتیں برستی ہیں. اور پھر یہ چیز کہ باہر سے علماء کرام تشریف لائیں، جید علماء کرام تشریف لائیں، وہاں سے اپنے آرام کو چھوڑ کر کے ہمارے لیے یہاں آئیں، تو یہ پھر نور علی نور ہو جاتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنے قدردان ہیں، ہم کتنی قدر کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں چند باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ معذور نہیں ہیں وہ اگر بیٹھ جاتے، کیونکہ میں بیان کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوں، وہ اگر آگے آ کر کے بیٹھ جائیں. جو جوان ہیں کرسی کے بغیر بیٹھ سکتے ہیں تو وہ نیچے آ کر کے وہ حصہ لے کر کے جائے گا. دیکھیے، اگر یہاں پر یہ اعلان کیا جائے کہ ہر آدمی جو ہے وہ متوجہ ہو، ہوشیار اور خبردار ہو. ابھی آسمان سے سونے کے سکے گریں گے، سونے کے سکے گرنے والے ہیں. اب جو جتنا ہوشیار، خبردار، چالاک ہوگا، جتنا سمیٹ سکتا ہے سمیٹ لے. تو یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جو انسان جس کو ہم اب نارمل کہتے ہیں وہ بھی بیدار ہو جائے گا. جس کو ہم کم عقل انسان تصور کرتے ہیں یا ہماری نظروں میں ہے، وہ بھی اس وقت ہوشیار، خبردار ہو کر کے سکے سمیٹنے میں لگ جائے گا. اور کوشش، کیونکہ آزادی دی گئی ہے کہ جتنا جو کوئی سمیٹ سکے سمیٹ سکتا ہے. تو دین کے معاملے میں جب دین کی بات ہو رہی ہو، قرآن کی بات ہو رہی ہو، جس میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہو، ہماری فلاح کا راز مضمر ہو، ہماری دونوں جہان کی سعادتیں جس میں لکھ دی گئی ہو، وہاں اگر قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی ہو تو ہم وہاں لاپرواہی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. اور ہمارا حال یہی ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں بہت چالاک ہیں، بہت چست ہیں، بہت ہی شاطر بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن دین کے معاملے میں جب بات آتی ہے تو بس شیطان یہ سمجھا دیتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ مہربان ہے. تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں. تو جتنا آپ متوجہ ہو کر کے مہمانوں کی بات سنیں گے اور وہ اپنے دل میں لے کر کے جائیں گے تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا. دوسری بات یہ ہو گئی کہ ہم موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہم جب بھی کوئی مجلس ہوتی تو فوراً موبائل نکال کے ریکارڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ نامناسب عمل ہے. جب دین کی بات ہو رہی ہے تو وہ تو دل پر نوٹ کرنی ہے. ہم اپنے موبائل میں نوٹ کر کے لے جائیں گے، پھر سننے کی فرصت کہاں ہے؟ جو یہاں اپنے ٹائم نکال کر کے، ہم تو آپ کے
शुक्र गुजार हैं आपने इदारे के लिए या अपने सुनने के लिए अपना वक्त निकाला है, बहुत बड़ी बात है, इदारे की मोहब्बत में निकाला है। हो सकता है कल क़यामत के दिन यही मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए, लेकिन यहाँ के वक्त ज़ाया करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए बहुत ही होशियारी के साथ और बहुत ही समझदारी के साथ बैठे और पूरे मुतवज्जे होकर के बैठे कि यहाँ पर हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी होगी। इनके सीने में कुरान पाक एक एक लफ्ज़ मिन व अन मुकम्मल है, और ये छोटी बात नहीं, अल्लाह की तरफ से इंतखाब होता है, वरना सारी दुनिया के लोग चलते फिरते आपको हाफिज मिल जाते हैं। जिस तरह अंबिया का इंतखाब होता है, जिस तरह उलमा का इंतखाब होता है, अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों का इंतखाब होता है, इसी तरह कुरान के हामिलीन के लिए भी इंतखाब होता है। ये छोटी बात नहीं है कि कुरान जिसके मुताल्लिक़ है, लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह, कि अगर ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो रेजा रेजा हो जाता। इतनी इसके अंदर अजमत है, हैबत है, जलाल है, कदर मंजिलत है। लेकिन एक इंसान जो बिल्कुल नातवान है, ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, हर एतबार से कमज़ोर है, वो हामिल कुरान बन जाता है। दुनिया दारुल असबाब है, हर काम यहाँ सबब के तहत होता है, हर चीज़ यहाँ असबाब के तहत अल्लाह पाक चलाते हैं। कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। मैंने जो आयत करीमा तिलावत की, आप सुनते हैं, 12 सुनते हैं, अभी हमारे बच्चों ने भी अपनी तकारीर के अंदर इसको, हमारे उलमा भी सुनाते हैं। लेकिन अल्लाह ने सबब के तौर पर इंसान का इंतखाब किया कि कोई इंसान इसके लिए तैयार हो जाए, ये कितनी फजीलत की बात है, कितनी बड़ी बात है। और फिर कुरान का हामिल बन जाना, उसके बाद उसके लिए इनामात, अल्लाह अकबर, अहादीस मुबारक भरी पड़ी है कि कुरान के हामिलीन को अल्लाह क्या क्या देगा, उनके वालिदैन को क्या दिया जाएगा। ये 12 सुना होगा आपने कि उनके वालिदैन को सूरज से ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। ये तो उनके माँ बाप की जो है, उनको ये चीज इनाम मिलेगा। खुद हाफिज कुरान की क्या कदर होगी। इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रऊहा, तो पढ़ता जा और जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा। ये छोटी बात नहीं है, ये कल वहां पता चलेगा जब हाफिज कुरान की आयतें पढ़ेगा और जन्नत के मनाजिल को, उनके दर्जात को तय करता चला जाएगा। सबकी आंखें वहां खीरा रह जाएंगी और सबकी आंखें खुली रह जाएंगी। आज ये हुफ़ाज़ आगे चलेंगे, आज ये उलमा आगे चलेंगे, आज ये अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले, अल्लाह के रास्ते में काम करने वाले, मदारिस की खिदमत करने वाले, मदारिस में पढ़ने वाले, मदारिस के मुंतज़िमीन, जो हमारी नजरों में दुनिया में चंद तके के आदमी समझे जाते थे, जहाँ हम दुनिया में इनको नीच नजरों से देखते थे, ये तो हाफिज ही है, ये तो आलिम ही है, ये तो इमाम साहब ही है। लेकिन कल क़यामत के दिन इनको अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। अल्लाह इनको कहेगा मेरे खास बंदों के साथ बैठो, तुम्हारी मंजिल बहुत बड़ी है, तुम्हारी कदर बहुत ज्यादा है, और वहां उनको जो है नवाजा जाएगा। तो बहरहाल अल्लाह पाक ने सबब के तौर पर इन हुफ़ाज़ का इंतखाब किया है कि जिसके सीने में कुरान को रखा जाए। जब कुरान करीम नाजिल हुआ करता था इब्तिदाई दौर में, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक को हरकत देते हैं कुरान को याद करने के लिए। अल्लाह की तरफ से वही आई, कहीं भूल न जाए। अल्लाह ने कहा ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्न अलैना जमअहु व क़ुरआनहु फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि' क़ुरआनहु थुम्मा इन्न अलैना बयानहु। ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हैं? हमने तो इसका हिफाजत का जिम्मा लिया है, आप सिर्फ सुने, खामोशी के साथ सुने। ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही, ये तो हमारा काम है, हम इसकी हिफाजत करेंगे, हम इसको जमा रखेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं कि कुरान के एक एक लफ्ज की हिफाजत होगी, सिर्फ इतना ही नहीं कि कुरान के हुरूफ की हिफाजत होगी, इसके ज़बर और ज़ेर की हिफाजत होगी, नहीं, बल्कि इसके जो मानी है उनकी भी हिफाजत होगी, इसकी जो तफसीर क़यामत तक बयान की जाएगी उसकी भी हिफाजत होगी। उसके लिए भी अल्लाह पाक रिजाल को कायम करेगा, रिजाल को बाकी रखेगा। वो कुरान के मानी को कायम रखेंगे, वो कुरान के मानी की हिफाजत करेंगे, कुरान की सेहत का ख्याल रखेंगे कि कुरान सही पढ़ा जाए, कुरान दुरुस्त पढ़ा जाए। सबसे पहला हक तो यही है कि कुरान करीम की सही तिलावत की जाए। मदारिस के क़याम का मकसद क्या है? हमारे इलाके में यहाँ पर कुरान हम सुनते थे, हम अपनी ज़बान में, मादरी ज़बान या फिर तौशुर कुरान मानन चाहिए, तौशुर कुरान पढ़ा। और जो हमारे गुजर भाई हैं, गुजर तबके से ताल्लुक़, उनका अपना तर्ज है पढ़ने का। तो दूसरी ज़बान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका अपना तर्ज है, अपना तरीका है पढ़ने का। लेकिन कुरान उस तर्ज में पढ़ना है, उस लहजे में पढ़ना है जिस लहजे में ये नाजिल हुआ है। इक़राउल कुरान बिलुहूनिल अरब, अरब
की तरह पढ़ना है, ये हमारे अपने तर्ज में, अपने अंदाज में नहीं पढ़ना है, ये उस तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह ये नाजिल हुआ है। इसकी आवाज की भी हिफाजत होगी, इसके लहजे की भी हिफाजत होगी, इसके हुरूफ की भी हिफाजत होगी, इसकी मानी की भी हिफाजत होगी, इसकी तफासिर की भी हिफाजत होगी। और उसके लिए अल्लाह पाक इंतखाब करते हैं अपने खास बंदों का, उसकी हिफाजत के लिए, उसके पढ़ने के लिए, उसके सुनाने के लिए। तो उनमें से एक कड़ी ये भी है कि जिन्होंने अपने इस कुरान को अपने सीने में जगह दी है, इसके अल्फाज को अपने सीने में बसाए। तो ये छोटी हस्तियां नहीं है, इनकी दस्तारबंदी होगी, ये छोटी हस्तियां नहीं है। आपके लिए, हमारे लिए इनका दीदार करना भी भाई से सवाब है। हाँ, ये हमारी मगफिरत का जरिया बन सकता है, बस हम अपने दिल के रुख को सही कर लें। अगर हम अपने दिल के रुख को सही कर लेंगे, मजमा इत्तिफाकन जमा नहीं होता है, और जब मजमा जमा होता है तो जब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साहिब दिल भी होते हैं। इसलिए तमाम लोग अगर मुतवज्जे हो जाएं, बात को सुने और इन कुरान करीम के हामिलीन की जियारत करें, और इस नीयत से जियारत करें कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह पाक जिस तरह इस वक्त ये स्टेज पर रौनक अफरोज है, कल क़यामत के दिन भी इनको स्टेज पर रौनक अफरोज, वहाँ अल्लाह का स्टेज लगेगा, इनको वहाँ भी रौनक अफरोज होना है। हम इनकी जियारत कर लेंगे, हम इनके साथ मोहब्बत का मामला करेंगे, हम इनके साथ हमदर्दी का मामला करेंगे। हो सकता है कल क़यामत के दिन अल्लाह को हमारी ये एक अदा पसंद आ जाए और इसकी वजह से हमारी मगफिरत का सामान बन जाए। ये छोटी बात नहीं है। तो बहरहाल तमाम हजरात मुतवज्जे होकर के बैठ जाएं। असल बयान तो हजरत का होगा, बस मैं ये